Very good morning, children. Let us move on to the last part of this chapter, which is very important as it will deal about miscellaneous problems of circles as well as condition of tangency. How we can find equation of tangent to a given circle at a point and from a point. Okay, equation of tangent to a circle at a point and from a point. We know that at a point we can draw only one tangent and from a point we can draw two tangents. So we'll be interested in finding the equation of those tangents with the given information of circle. So let's begin. Initially we'll start with how we can check whether the two circles or two given circles are touching internally. If you remember in 10th standard we had learned if the circles are touching internally, the diagram can be like this circle with center 1 and this is another circle. Please cooperate with my diagram with center 2. Let us say that radius of this circle is R2, center of first circle is C1 and radius of first circle is R1. I have drawn circles with center C1, C2 and radius R1, R2. Since the circles are touching internally, we can say that distance between the centers of two circles must be modulus of R1 minus R2. If the difference of the radii of the two circles is equal to distance between their centers, that is दोनों रेडियस का डिफरेंस अगर सेंटर्स का डिस्टेंस आता है, this shows that circles are touching internally. Okay, if they are touching internally, it means C1 C2 is equal to R1 minus R2. If you have to check, then you have to find what is C1 C2, what is R1 minus R2. If they come out to be equal, it means they are touching internally. Okay, next we have circles touching externally. कैसा आएगा diagram? If circles are touching externally, it will be like this. Correct, these two circles are touching externally. Let us say your center of first circle is C1, second circle is C2. This is radius R1, this is radius R2. From figure it is clearly seen that two circles are touching externally if distance between their centers is nothing but R1 plus R2. That is, if sum of the radii of two circles is equal to distance between their centers, it means circles are touching externally. The distance between the centers of two circles is equal to sum of the radii of two circles. That means circles are touching externally. What can I say? Circles are touching externally. Okay. Next, circles can touch at two distinct points also. Correct? Circles can touch at two distinct points. कैसा आएगा diagram? This one circle, it's another circle. Yes, center C1, center C2. Two circles are touching at two distinct points A and B. Correct? Two circles are touching at two distinct points A and B. If you observe, ये external से कम है, internal से ज़्यादा है. क्या है ये? External से कम, internal से ज़्यादा. So here I can say that if distance of centers is less than R1 plus R2, if distance between centers is less than R1 plus R2 and more than R1 minus R2, modulus of more than R1 minus R2 and less than R1 plus R2, then I can say that circles are touching at two distinct points. And remember, these two circles are meeting at 2 points. So if I solve the circle C1 and circle C2 simultaneously, I'll get the equation of AB. कोई भी दो ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, if I solve them simultaneously, I get the equation of that common point. Here 2 points are common, so I'll get equation of AB. क्या मिलेगा? Equation of common chord. Here AB is a chord shared by both the circles. So if I solve C1 circle and C2 circle simultaneously, the equation which I get
will represent the equation of AB, will represent equation of AB. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिसजॉइंट सर्कल्स, मतलब सर्कल्स टच ही नहीं कर रहे हैं. लाइक दिस सर्कल C1, सर्कल C2 है ना, सर्कल विद सेंटर C1, सर्कल विद सेंटर C2. These two are not intersecting at all. These two are not intersecting at all. इसका मतलब distance between the centers, distance between the center of circle is always greater than R1 plus R2. अगर R1 plus R2 से बड़ा है मतलब वो टच नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा है और डिस्टेंस काफी बड़ा है सेंटर का दोनों रेडियस से. इट मींस सर्कल्स आर not touching at all. They are called as disjoint circles. What we call them as? We call them as disjoint circles. Understood? Yes. Circles can touch internally, externally, two distinct points, not touching at all. Okay, clear everyone? Now sums based on that. They have asked you that show that circles touch externally. They've asked you that show that circles touch externally. So what will I do? From the given equations, I'll first find what is C1, what is C2. तो C1 क्या आता है बच्चों? माइनस जी माइनस एफ बराबर. तो C1 आएगा इसका हाफ और ऑपोजिट दैट इज 2, इसका हाफ और ऑपोजिट दैट इज -5. सिमिलरली C2 आएगा अगेन माइनस जी माइनस एफ दैट इज इसका हाफ और ऑपोजिट दैट इज -4, इसका हाफ और ऑपोजिट दैट इज 3. नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट इज R1. व्हाट इज R1 नाउ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है? 20 है ना. सो हाउ मच आई विल गेट R1 इज 4 प्लस 25 29, 29 माइनस 29 तो कितना आ रहा है? 3. R1 कितना आ रहा है? 3. सिमिलरली R2 कितना आएगा चिल्ड्रन? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितना है? -24 दैट इज 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 24 49. तो R2 आएगा 7. कैलकुलेशन पार्ट यू टेक केयर चिल्ड्रन. नाउ I'll find distance of C1 C2 by distance formula. कितना आएगा वो? 2 minus of -4 the whole square plus -5 minus 3 the whole square. कितना आएगा? 6 square plus 8 square. ये आएगा √100. आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 10. Open the calculations, sorry open the brackets, solve it. You will get that distance of C1 C2 is coming out to be 10, which is nothing but R1 plus R2. correct? ये R1 3 है, R2 7 है. that is आपको मिल रहा है distance of C1 C2 is nothing but R1 plus R2. therefore you can say that circles are touching externally. circles are touching externally. क्या बोलोगे? circles are touching externally. Understood? Yes, very easy sum. Clear everybody? Next, show that circles touch internally. Again C1 निकालेंगे. I hope everybody knows how to find center now. तो C1 आएगा इसका हाफ ऑपोजिट, इसका हाफ ऑपोजिट. C2 आएगा इसका हाफ ऑपोजिट. There is no y term over here, so this will be 0. correct? Again R1 क्या आएगा? G square plus F square minus C कितना है? -28 तो ये +28. 28 plus 4 32, 32 plus 4 36. so R1 comes out to be 6. R2 क्या आएगा बच्चों? 2 square plus 0 square माइनस सी कितना है? -12 तो ये +12. तो R2 आएगा 4. कितना आ रहा है R2? 4. करेक्ट. नाउ आई विल फाइंड व्हाट इज C1 C2 जो आएगा 2 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 द होल स्क्वायर दैट इज 2. कितना आ रहा है C1 C2? 2. दैट इज
distance of C1 C2 is coming out to be 2, which is nothing but R1 minus R2, correct? तो 6 minus 4 कितना होता है 2. That is, since distance of C1 C2 is equal to R1 minus R2, therefore circles touch internally. Circles touch internally. 3-4 times this type of sums have been asked in competitive exams also. So it is very easy sum and very quick you can get the answer. Am I right? Yes or no? Clear everyone? Next. Now most important part of the chapter, that is parametric form of the circle. So to make it easy, let us take a standard circle बच्चों. Standard circle का मतलब क्या है? Circle having center at 0, 0. बराबर? Now I locate any point xy on this circle. Let us say that pxy be any point on the circle. तो देखो यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 आएगा, बराबर? दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, करेक्ट? तो अगर इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस फ्रॉम सेंटर एंड दिस, ये O है मेरा, ये P है, ये परपेंडिकुलर बनाया एंड दिस इज थीटा एंड P के कोऑर्डिनेट्स है x, y. सो व्हाट कैन आई से चिल्ड्रन? OM can be treated as x, PM can be treated as y. स्टैंडर्ड सर्कल लिया है तो लेट द रेडियस बी r. सॉरी, लेट द रेडियस बी r. पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है मतलब आई नीड टू कन्वर्ट x एंड y depending on a common variable, depending on a common variable, and here I will take the common variable as theta. In short, अगर मैंने OM सेगमेंट को थीटा से रोटेट करता गया, if I rotate OM segment with angle theta, I will get a complete circle. Yes, अगर OM को मैं थीटा से रोटेट करते गया या शिफ्ट करते गया, I will get a complete circle. So what I want here, I want to convert the equation of circle depending on theta. अगर आपको याद हो, you have studied eliminate theta वाला questions. Yes, वही करना है हमें इक्वेशन मालूम है सर्कल का इक्वेशन क्या है, x square plus y square equal to r square. We know the Cartesian equation. We want equation in terms of theta. ठीक है? So if x square plus y square equal to r square है और ट्राइंगल OPM को if I apply trigonometry, ट्राइंगल OPM को if I apply trigonometry, तो क्या मिलेगा बच्चों? Let us check. ये स्टैंडर्ड सर्कल लिया है मैंने, तो x क्या आएगा बच्चों? x आएगा r cos theta, because cos theta is adjacent upon hypotenuse. तो x आएगा r cos theta. Similarly y आएगा r sin theta, है ना? So see now both x and y are depending on theta. So here theta is called as the parameter. So for standard circle, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta becomes पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल. अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया आपको ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट? एलिमिनेट थीटा बोला तो अंडरस्टूड. सो फॉर स्टैंडर्ड सर्कल एक्स इज आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा. क्या है? एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, करेक्ट? नाउ जरूरी नहीं है हर बार सेंटर ओरिजिन पे हो, सेंटर कैन बी एनीवेयर. Suppose center is at h, k. Center is at h, k. डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, देखो ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है h, k. इसका डायग्राम अगर मैंने बनाया, my first task is to bring the center at origin. मतलब मैं सर्कल को पहले शिफ्ट करूंगा, कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूंगा, फिर रीशिफ्ट करूंगा, करेक्ट? या इन शॉर्ट वी नो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x minus h the whole square, y minus k the whole square equal to r square, correct? So I can write x minus h as r cos theta, y minus k as r sin theta, बराबर? इसको मैंने इससे कंपेयर किया स्टैंडर्ड सर्कल से, तो x minus h हो जाएगा मेरा r cos theta, y minus k हो जाएगा r sin theta. Therefore x आएगा h plus r cos theta and y आएगा k plus r sin theta. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ जनरल सर्कल क्या आएगा? x equal to h plus r cos theta,
y is equal to k plus r sin theta, x is equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. इसका मतलब क्या है? Any point on the circle will have these coordinates x y, करेक्ट? सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, they will satisfy h plus r cos theta and k plus r sin theta. Remember a very important concept while solving problems of circles. Okay, parametric form very useful for standard circle. h और k 0 होता है. For general circle x equal to h plus r cos theta, y is equal to k plus r sin theta. ठीक है? Okay, this was about circles. Let us deal circles with tangents. Let us deal circles with tangents. Okay. Now see, I want to find equation of tangent to a circle at p x1 y1. ये circle है मेरा. Let us assume this standard circle. मतलब center इसका 0 0 लेते हैं to make it simple. I want to find equation of this tangent which is meeting at p x1 y1. Remember at word बहुत important है. At p x1 y1. Initially I'll derive the equation. Then मैं आपको बताऊंगा shortcut तरीके से at के लिए आंसर कैसे लिखते हैं. My focus will be on at a point. याद रखो, focus will be on at a point. ठीक है? तो देखो, है तो ये tangent ही. We know that radius is always perpendicular to tangent. Do you agree? ये मेरा radius आएगा. We'll just apply our basics. Correct? Radius is always perpendicular to tangent. Correct? Are you getting it? So now tell me, what can I say about slope of OP? मुझे किसमें इंटरेस्ट है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने में. ये टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है L. तो फॉर दैट आई विल फर्स्ट फाइंड व्हाट इज स्लोप ऑफ OP. OP का स्लोप क्या आएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1, है ना? That is y1 upon x1. Now we know that since tangent is perpendicular to OP, है ना? tangent क्या है? OP को perpendicular है. और मैं बोलता हूं tangent का स्लोप जो है वो m है. tangent का स्लोप कितना है? m. और tangent perpendicular है तो m into slope of OP, that is y1 upon x1, should be minus 1. Since they are perpendicular, so I will say m into m1. Sorry, I'll say since tangent is perpendicular, multiplication of slopes will be minus 1. Am I right? So m into y1 upon x1 is equal to minus 1. Therefore m कितना आएगा बच्चों? Minus x1 upon y1. ये मिला मुझे स्लोप ऑफ tangent. Do you agree? क्या मिला मुझे? स्लोप ऑफ tangent. क्या मिला? स्लोप ऑफ tangent. tangent का स्लोप पता है. tangent किस पॉइंट से पास हो रहा है ये पता है. tangent का स्लोप मालूम है. tangent पॉइंट P से पास हो रहा है. So what can I say? Equation of tangent at P x1 y1 is y minus y1 m x minus x1, है ना? y minus y1 equal to m times x minus x1. ठीक है? That is y minus y1. स्लोप कितना है बच्चों? माइनस x1 अपॉन y1. x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y y1 माइनस y1 स्क्वायर x x1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर ऐसा कुछ आएगा. दैट इज x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. आया समझ में? इतना समझ में आया सबको? नाउ सी, सिंस p x1 y1 इज लाइंग ऑन द सर्कल. मेरा सर्कल का इक्वेशन क्या था बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बराबर. बट ये पॉइंट P अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है मतलब P शुड सेटिस्फाई द सर्कल. क्या होना चाहिए? P मस्ट सेटिस्फाई द सर्कल. दैट इज सिंस P लाइज ऑन सर्कल, अगर P सर्कल पे लाई कर रहा है तो आई कैन से दैट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना आना चाहिए? r स्क्वायर ना, क्योंकि वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. करेक्ट? अब अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको मैं यहां पुट करूंगा. So I'll get equation of tangent
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1 क्या मिलेगा, x x1 plus y y1 is equal to r square. So equation of tangent to a standard circle at p x1 y1 is x x1 plus y y1 is equal to r square. x x1 plus y y1 is equal to r square. इतना आया समझ में सबको? अभी शॉर्टकट ट्रिक कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो, सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या था सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। सो नाउ सी, जब भी आपको टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाए, चाहे वो सर्कल हो, एनी कर्व, वी डोंट बॉदर व्हाट कर्व इट इज, बट टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है एंड एट वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया है, एट, इन दैट केस जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से। उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को आई विल रिप्लेस बाय एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को आई विल रिप्लेस बाय वाई वाई वन। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन लिखेंगे, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन लिखेंगे, रेस्ट एवरीथिंग सेम टेंटेटिवली। ठीक है, समझ में? स्टैंडर्ड सर्कल की बात कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई टेक सम्स बेस्ड ऑन दिस। बट याद रखो, एट वर्ड आया, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से। इमीडिएटली आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। गेटिंग इट? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ये हम पिछला वाला पार्ट जो है हम जनरल सर्कल के लिए भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन दैट y इक्वल टू mx प्लस c। एक जनरल लाइन है ये, वी नो दैट y इक्वल टू mx प्लस c इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन। किस कंडीशन पर मैं बोल सकता हूं कि दैट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज अ tangent टू अ सर्कल, दैट y इक्वल टू mx प्लस c इज अ tangent टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? सो आई विल से दैट लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन बी y इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन बी mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने अभी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ tangent, इक्वेशन ऑफ tangent टू सर्कल at p x1 y1, इक्वेशन ऑफ tangent टू द गिवन सर्कल at p x1 y1 क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर को आई राइट x x1, y स्क्वायर को आई राइट y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। करेक्ट, ये मेरे tangent का इक्वेशन है, सॉरी ये मेरे tangent का इक्वेशन वन लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन टू टेंजेंट का इक्वेशन है। करेक्ट, बट मुझे चेक क्या करना है कि ये लाइन में टेंजेंट है, सिंस लाइन वन एंड लाइन टू आर टेंजेंट, है ना, दोनों टेंजेंट ही चाहिए मुझे। लाइन वन फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट आर, लाइन वन जो है वो टेंजेंट होना चाहिए, और लाइन टू टेंजेंट का इक्वेशन मैंने फाइंड किया है। सिंस लाइन वन एंड लाइन टू आर टेंजेंट्स ऑफ सेम सर्कल at same point, same circle at same point, अगर दोनों इक्वेशन एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दोनों इक्वेशन एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, देन उनके कोएफिशिएंट्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। मतलब इस x का कोएफिशिएंट क्या है, x1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, m, दे शुड बी इन प्रोपोर्शन। दैट इज y1 अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर अपॉन c। All the three coefficients of x, y and constant must be in proportion. बराबर, all the three coefficients must be in proportion. तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट किया तो x1 क्या मिलेगा, माइनस a स्क्वायर m अपॉन c, y1 क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन c। तो देखो मुझे इन शॉर्ट p x1 y1 मिल गया ना, तो मेरा p x1 y1 क्या आ रहा है, p आ रहा है माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी एंड ए स्क्वायर बाय सी। बराबर,
माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एंड ए स्क्वायर बाई सी। अब ये पॉइंट P जो है ये डेफिनेटली सर्कल पे लाया करेगा, डू यू अग्री? ये पॉइंट P जो है ये डेफिनेटली सर्कल पे लाया करेगा। सिंस इट लाइज ऑन सर्कल, सिंस P लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मेरा x1 कितना है? माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ रहा है? क्लियर? इसको ओपन करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करके देखते हैं क्या आएगा। मुझे मिलेगा ए रेस टू 4 एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मैं सिर्फ स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस ए रेस टू 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, है ना? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट, देयरफॉर सी स्क्वायर आया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज मेरा सी आएगा ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टैंजेंट टू द सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल को टैंजेंट है ओनली इफ c इज इक्वल टू a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ओनली इफ c इज इक्वल टू a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। आ रहा है समझ में? कोई भी लाइन इस सर्कल को टैंजेंट है प्रोवाइडेड c की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए एज a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। आ रहा है समझ में? क्लियर? एनी डाउट्स? श्योर चिल्ड्रन? Let's move on to the interesting part again. Tangents drawn from an external point. पिछली बार at a point देखा था, अब मैं tangent बना रहा हूं बाहर से, that is x1 y1. तो I know that I can draw two tangents, है ना? I can draw two tangents. Are you getting it? क्या करोगे? I'll assume that slope of tangent is m. मैं मान के चलता हूं कि tangent का slope कितना है? m. अगर tangent का slope m है तो मेरा इक्वेशन ऑफ कोई भी एक टैंजेंट ले लो, मेरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आ रहा है सबको समझ में? नाउ अगेन टू मेक इट सिंपल आई विल टेक अ स्टैंडर्ड सर्कल विद सेंटर 0 0। बट 10th में हमने क्या पढ़ा था? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, बराबर? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू tangent. Do you agree? मतलब CP should be perpendicular, sorry, CA should be perpendicular to AP. We know that CA should be perpendicular to AP, बराबर? That is perpendicular distance CP, perpendicular distance CA should be equal to radius of circle. अगर सेंटर से tangent का perpendicular distance रेडियस आता है तो वो tangent है definitely. If the perpendicular distance CA is nothing but radius, then it is a tangent. तो क्या आएगा? I'll replace center coordinates in this equation. आपको पता है इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मेरा क्या है लाइन? x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो क्या करेंगे? सेंटर का x कोऑर्डिनेट और सेंटर का y कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? m टाइम्स 0 माइनस x1 माइनस 0 माइनस y1, है ना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट दैट इज m स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट दैट इज 1 स्क्वायर, बराबर? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आता है दैट इज माइनस mx1 प्लस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 का मॉड्यूलस अगर r आता है then it is a tangent to a circle, correct? That is tangent to a circle. आ रहा है समझ में? I'll square on both sides.
तो आएगा y1 माइनस एम एक्स वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन, है ना, दैट इज y1 स्क्वायर माइनस टू एम एक्स वन वाई वन प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट, ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक। सो लेट अस मिक्स द टर्म्स। तो देखो ये एम स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन एम नाउ। मैं इसे क्वाड्रेटिक इन एम मानता हूं। तो देखो मुझे पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे, तो इस इक्वेशन में अगर m की दो वैल्यूज आनी चाहिए, बराबर। कितनी वैल्यूज आएगी m की? दो वैल्यूज। एक होना चाहिए m1 जो इसका स्लोप आएगा, एक होना चाहिए m2 जो इसका स्लोप आएगा, बराबर। मुझे m1 m2 मालूम होना चाहिए, बट इफ आई फाइंड m1 प्लस m2 दैट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आता है? माइनस b बाय a, है ना, माइनस b बाय a दैट इज 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस b बाय a। सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस b बाय a, मतलब उन दो टेंजेंट्स के स्लोप का एडिशन कितना आएगा? 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बच्चों? c बाय a एंड इज y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। करेक्ट, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट्स, ऐसा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे। वी गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल नाउ। वी गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल। आ रहा है समझ में? सम ऑफ स्लोप्स मालूम है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मालूम है मुझे। ओके, let us use this concept now. We know that m1 plus m2 कितना आया था? 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। m1 m2 आ रहा है मेरा y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इमेजिन करो बच्चों, जो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाए हैं, अगर वो परपेंडिकुलर निकले, सॉरी ऐसे निकले परपेंडिकुलर, if tangents drawn from point p x1 y1 are perpendicular, perpendicular मतलब क्या है? इसका स्लोप मैंने m1 अज्यूम किया था, इसका m2 अज्यूम किया था। that is if tangents are perpendicular, if tangents are perpendicular, can I say m1 m2 is minus 1? can I say m1 m2 is minus 1? yes, है ना। तो कहीं से भी बनाओ, टेंजेंट यहां से बनाओ परपेंडिकुलर, यहां से बनाओ, तो मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल पॉइंट्स की, जहां से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। मुझे जानना है इन सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 ऐसे सारे पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट्स जहां से टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इन्हें अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरा लोकस क्या आएगा? इन्हें अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरा लोकस क्या आएगा? दैट आई वांट टू चेक। सो आई नो दैट इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, m1 m2 माइनस 1 आएगा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। क्या आ रहा है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, दैट इज मेरा नया लोकस आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। मतलब मुझे जो पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा, मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे एक और सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक और सर्कल मिलेगा जो पुराने सर्कल से बड़ा होगा। कैन यू सी? मेरा सर्कल था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या था मेरा सर्कल? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। अब मुझे क्या मिल रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, दैट इज आई एम गेटिंग अ बिगर सर्कल ऑफ रूट 2 टाइम्स द रेडियस। रेडियस ऑफ नया सर्कल विल बी रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ ओल्ड सर्कल, करेक्ट।
अगर ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को, तो r आएगा √2r, करेक्ट? r क्या आएगा? √2r, एंड दिस बड़ा सर्कल इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल. क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टर सर्कल. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, जस्ट √2 टाइम्स द रेडियस. दोनों का सेंटर सेम है, ध्यान से देखो, दोनों का सेंटर क्या है? सेम. एंड tangents drawn from external point are perpendicular to each other. ठीक है? मतलब अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर मेरा सर्कल है, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा? इसका डायरेक्टर सर्कल आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? A circle drawn joining the points, है ना? A circle drawn joining the points from which tangents are perpendicular, है ना? From which tangents drawn from external point are perpendicular. आया समझ में? क्लियर? एनी डाउट्स? श्योर एवरीवन? सबको समझ में आया? ओके. नेक्स्ट, लेट अस समराइज अबाउट इक्वेशन ऑफ tangent at a point. इक्वेशन ऑफ tangent at point Px1 y1. यहाँ पर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखता हूं, यहाँ पर सर्कल के tangent का इक्वेशन. ठीक है? अगेन मैं सिर्फ एट पॉइंट P की बात कर रहा हूँ. किसकी बात कर रहा हूँ? एट पॉइंट P. तो अगर सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो टेंजेंट आएगा x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू r स्क्वायर. क्या किया मैंने रिप्लेस किया x स्क्वायर को x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से. आ रहा है समझ में? बट अगर मेरा जनरल सर्कल निकला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा निकला, तो तुम डेरिवेशन सेम तरीके से करो. मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बताता हूं. तो इसमें आएगा, अगेन आई रिप्लेस x स्क्वायर बाय x x1, y स्क्वायर बाय y y1. x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाय 2. I'll replace this x by x plus x1 by 2. I'll replace y by y plus y1 by 2. I'll replace y by y plus y1 by 2 plus c equal to 0. In short, at word दिया है, tangent निकालना है, तो x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1, x को x plus x1 upon 2, y को y प्लस y1 अपॉन 2. क्या आएगा? y को y प्लस y1 अपॉन 2. अगर p मालूम है, आपको डायरेक्ट टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा. आया समझ में? अभी नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम px1 y1, फ्रॉम px1 y1 टू स्टैंडर्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. फ्रॉम अ पॉइंट बोला तो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx प्लस a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. आपको याद होगा, मैंने बताया था कंडीशन फॉर लाइन टू बी टेंजेंट इज c शुड बी a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. मुझे पता है दो टेंजेंट्स आएंगे, सो आई कैन राइट y इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. दिस एंटायर प्रोसेस विल रिपीट अगेन फॉर इलिप्स, अगेन फॉर पैराबोला, अगेन फॉर हाइपरबोला. ठीक है? खाली फ्रॉम अ पॉइंट के लिए c की वैल्यू बदलती जाएगी, एट अ पॉइंट के लिए कॉन्सेप्ट मतलब ये रूल्स सेम रहेंगे. आर यू गेटिंग इट? सो बहुत बार आपका रिवीजन होगा एट अ पॉइंट का, फ्रॉम अ पॉइंट का. आर यू गेटिंग इट? क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड?